ہے۔ افغانستان میں بھارتی سفارت خانہ پاکستان مخالف سرگرمیوں اور سازشوں کا مرکز ہے۔ دہشت گرد گروپوں کو بھارت اسلحہ اور فنڈز دے رہا ہے، 22 ارب روپے تقسیم کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اب مزید خاموشی پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اقوام متحدہ OIC P5 ملکوں کو ڈوزیر بھیج رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے بھارت۔ افغانستان میں بھارتی سفارت خانہ پاکستان مخالف سرگرمیوں اور سازشوں کا مرکز ہے۔ دہشت گردوں گروپوں کو بھارت اسلحہ اور فنڈز دے رہا ہے، 22 ارب روپے تقسیم کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اب مزید خاموشی پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ اور DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت CPEC کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے 700 اراکین کی بھارتی ملیشیا تیار کی گئی۔ ملیشیا سیل کو براہ راست بھارتی وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی بولے تخریب کاری کے کئی بھارتی منصوبے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنائے۔ CPEC کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان کے جوان تیار ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ سکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر، اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور DIA جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنانس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں، اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں، اور مقصد وہی اسٹیٹ ٹیررزم اور انسٹیبلٹی۔ یہ جو ڈوسیئر ہے جو کمپائل کیا گیا ہے، یہ ریویل کیا کرتا ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اور اس کے جو ہندوستان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہے۔ میں 3 آبجیکٹیوز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا آبجیکٹیو ہے پاکستان کی جو امن کی طرف پیش رفت ہے اس میں خلل ڈالنا۔ دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی، اور امن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی عزائم بے نقاب کر دیے۔ بولے بھارتی خفیہ ایجنسی داعش پاکستان بنا رہی ہے۔ بھارت نے کل عدن، TTP اور بلوچ باغی گروپوں کو اکٹھا کیا۔ افغان سفارت خانے میں کرنل راجیش ماسٹر مائنڈ ہے۔ کراچی میں روز سپانسر سلیپر سیل پکڑا گیا ہے۔ بدامنی پیدا کرنے والے مذہبی سکالرز اور اہم شخصیات ٹارگٹ تھے۔ DGISPR بھارتی ایجنسی اور دہشت گردوں کے روابط کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت سامنے لے آئے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ سہولت کار ڈاکٹر اللہ نظر کے 17 آڈیو کلپس پکڑے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے 87 کیمپ چلا رہا ہے، جس میں سے 66 تربیتی کیمپ افغانستان میں ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں 30 داعش دہشت گردوں کو پاکستان بھی منتقل کیا۔ Terrorist training and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. And these investigations confirm Raw's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred.
RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. You can see some details flashed on the screen. I'll just explain them. Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achhu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. Aslam Achhu remained admitted in Indian hospital. You can see a picture of his in one of those hospitals, while he traveled under the cover name of Abdul Hamid. His passport, having double entry visa stamped in India, can also be seen in the picture. Dr. Allah Nazar also traveled to India on fake documents under the cover name of Haji Nabi. Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. DGISPR نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت نے الطاف حسین کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی. اجمل پہاڑی، سرفراز مرچنٹ اور طارق میر نے عدالت میں اعتراف کیا. MQM لندن کے دہشت گردوں کو اسلحہ اور بارود بھارت نے فراہم کیا. حاجی نجیب اللہ، حاجی عزیز اللہ اور حاجی بیدار RAW کے فرنٹ مین ہیں. فنڈنگ بیرون ممالک کے ذریعے ہوتی ہے. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارتی چوکیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جس میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے. بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچنے کا بھارتی میڈیا نے اعتراف بھی کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی چوکیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارتی چوکیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جس میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے. بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچنے کا بھارتی میڈیا نے اعتراف بھی کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی شدید مذمت. وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت. عثمان بزدار کہتے ہیں بھارت کا نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت اور بزدلانہ فعل ہے. متعصب مودی سرکار خطے میں ہم کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. بھارت شہری آبادی کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے. مودی سرکار کی LOC کی خلاف ورزیاں خطے میں امن کے لیے خطرہ ہیں. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا سیاسی کنیز راج کماری کی کرپشن کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں. گلگت بلتستان میں بھی سیاسی حریفوں کو چاروں شانے چت کریں گے. فرد واحد کی خوشنودی کے لیے ریاستی اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. مسترد شدہ چولا گلگت الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنے کے لیے چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. معاون خصوصی نے مودی سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. بولیں کہ مودی نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. بھارت راہ کے ذریعے قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہا ہے. مودی سرکار کسی بھی بھول میں نہ رہے. بھارت کو ہم اس کی زبان میں ہی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. فوج ایک وفاقی آئینی ادارہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہر وفاقی ادارے کے سربراہ ہیں. مریم بی بی آئین اور قانون سے ماورا اقتدار کے سنگاسن کے جھولے لینا چاہتی ہیں اور وہ اقتدار کے سنگاسن پہ اسی طرح بیٹھنا چاہتی ہیں جیسے جاتی عمرہ کے محل سے نکل کے پارٹی کی سیٹ پہ پارٹی کی قیادت پہ آ کے بیٹھی ہیں. یہ سنگاسن جو ہے آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ کی پرچی سے تو آپ کو مل سکتا ہے. چور دروازے، بلیک میلنگ اور ایڑیاں رگڑنے سے نہیں ملے گا. آپ ایڑیاں رگڑیں، آپ گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اب آپ کی ایڑیاں رگڑنے کے دن آنے والے ہیں. بلاول بھٹو کا پڑھاؤ گلگت بلتستان کے نتائج، اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہے. زرداری صاحب کی زبان اور ان کی سوچ نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. کل وہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے. الیکشن کا کل کا رزلٹ آنے کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور کل وقت ثابت کرے گا کہ عوام کس قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں.
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान कल सजेगा, जिसके लिए सियासी जमातों ने कमर कस ली है। इंतखाबात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आखिरी जिला खमरंग में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके लिए मुल्क भर से पुलिस की नफरी तलब की गई है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ब्लैक मेलिंग और धांधली का शोर मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। गिलगित के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई दी। ये हालात को देखते हुए नया बयानिया बदलते रहते हैं। उनका कहना था कि अब इनका बयानिया नहीं चलेगा, ये इदारों में तसादुम चाहते हैं, मारूसी सियासत करने वाले लोग हैं। पसंद के नताइज हासिल करना इनकी सियासत का बुनियादी सतून रहा है। इनकी नज़र में इलेक्शन वो ठीक होते हैं जिनमें ये जीतते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज इमरान खान से जुड़ा हुआ है। किया PMLN हुकूमत को कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए और वो कमेटी बनी जिसमें के मेजॉरिटी इन्हीं की थी, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए उसी की बयानियात पे 2018 का इलेक्शन भी हुआ। का जो रवैया है, इनकी जो तरीक़ाकार है, जो कि हमने हमेशा देखा है, जो आजकल भी सुन रहे हैं मुख्तलिफ जलसों में, कि इलेक्शन वो दुरुस्त होते हैं, जजेस वो ठीक होते हैं जो कि इनके हक में फैसला दें। हमेशा का इनका एक बुनियादी सुतून रहा है इनकी जितनी भी सियासत है। अगर वो ना हो तो वो फिर उस जज से बुरा कोई जज है नहीं, और अगर हार जाएं तो फिर धांधली हुई है। तो इनका जो ये रवैया बुनियादी तौर पे इस सोच की अक्कासी करता है कि जिस तरह अगर आप PMLN की लीडरशिप के बयानात देखें जो स्वात में हुए, जो और जगहों पे हुए, पहले तो ये तय कर लें कि ये चाहते क्या हैं। आए रोज़ एक नया मीसाक बनाने की, अब मुझे पता चला है कि वो जो 15 को होना था वो भी अब 17 को हो गया है। जो नया एक मीसाक बना रहे हैं, एक और मीसाक बना रहे हैं जिसकी कि ये खुद धज्जियाँ उड़ाने में माहिर हैं। और माजी को रिकॉर्ड रखते हुए PML नून पे इतबार भी नहीं किया था कि सबको बाइकआउट करा के और फिर आखिरी दिन खुद इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। क्या कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत? अगर तो एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दिया जाए, और मदद किससे ली जा रही है, किस इदारे से ली जा रही है? वो वही इदारा है जिसके वाले साहब जिनके वाले साहब ने उस इदारे को अपना हदफ बनाया हुआ है, अटैक किया हुआ है। तो इनकी जो मुतज़ाद सोच है, मुतज़ाद बातें हैं, वो इस चीज़ की इस एक बात आया होती है कि ये लोग न तो जमहूरियत पसंद हैं, ना इनका रवैया जमहूरी है, ना इनकी जहनीत जमहूरी है, और गैर जमहूरी तरीके से उस हुकूमत को हटाने की बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत पसंद अपने आप को कहते हैं, ये हो ही नहीं सकते जमहूरियत पसंद। एक टिकट में दो मजे लेना चाहती है नून लीग, ये कहते हैं शेख रशीद। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सियासत की नफी की है। नवाज शरीफ जानते हैं कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। नून लीग से BJP के खिलाफ आवाजें उठेंगी। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को पता है मेरी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। मैं वैसे भी, मरियम साहब अभी डिस्क्वालीफाई हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले, और शहबाज शरीफ की सियासत की नफ़ी की है नून लीग ने। अब फैसला मरियम साहबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ जो कि कायम मकाम सदर हैं वो नहीं कर रहे। और मरियम साहबा का बयानिया जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उनको समझ आ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और पाकिस्तान का अजीम जर्नैल, अजीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज़े तौर पर कह चुका है कि फ़ौज की कमिटमेंट जो है वो मुंतखब हुकूमतों के साथ है। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ वो खड़े होंगे। और हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज को कहना, मैं समझता हूँ ये खुद आइन और कानून की नफ़ी है। आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो आइनी और कानूनी तरीके हमें ख़त्म करने के हैं उनकी सख्त और ताकत PDM में नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह से कि अल्लाह इमरान खान के साथ मदद करेगा और इस मसाइल से इमरान खान निकले। जो भी हारेगा इस मुल्क में कहेगा धांधली हुई है। इस मुल्क में जमहूरियत को का सबसे बड़ा सानिया ये है कि हारने वाला, अब तो अमेरिका में भी हार को लोग तस्लीम नहीं कर रहे। देखें, अब एक ऐसा वक्त दुनिया में आ गया है कि जो जमहूरी तरीके से हारते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। और परसों से, कल शाम से आप हर चैनल पे ये सुनेंगे कि धांधली हुई है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने
जितने जलसे एक एक हलके में जलसा किया है, अब वोट तो लोगों ने देना है, वोटों का फैसला लोगों ने करना है। जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के सी पैक की रीढ़ की हड्डी होगा। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के लिए सख्त सजाओं पर मुश्तमिल कानून लाने का ऐलान। वजीर आजम ने कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस एहलकार को टेलीफोन करके पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श की बहादुरी और जुर्रत की तारीफ की। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ASI मोहम्मद बख्श ने पुलिस के मुस्बत किरदार को उजागर किया। कौम को ऐसे अफसरान पर फख्र है। आइंदा हफ्ते इंसदाद असमत दरी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस से खामियां दूर होंगी। कश्मीर ज्यादती केस का एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम रफीक मलिक को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मुलजिम गोलियां लगने से मारा गया। मुलजिम खैरुल्लाह बुगटी को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। 24 घंटों में मजीद 17 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7109 हो गई, जबकि 3,54,938 मरीज सेहतयाब हो चुके। 23,641 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,09,309, सिंध में 1,53,873, खैबर पख्तूनख्वा में 41,723, बलूचिस्तान में 16,328, गिलगित बल्तिस्तान में 4,434, इस्लामाबाद में 23,533, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,261 केसेस रिपोर्ट हुए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान कोरोना वायरस से मुतासिर अहलिया और बेटे का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर पर ही करंतना कर लिया। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की आवाम से सेहत याबी की अपील। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कोरोना की पहली लहर में एहतियात के पेश नज़र ये शरह सिर्फ 1.5-2% थी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पहले की तरह एहतियात बरतना होगी। अवाम ने कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दिया। हमें अपने रोजगार के साथ साथ एहतियात भी करना होगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तामीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं।
घर गृहस्थी की बातें भी होंगी। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। दुनिया भर में कोरोना से 13,09,000 हलाकतें हो गई हैं, जबकि 5,37,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,49,000, ब्राजील में 1,64,946, मैक्सिको में 97,000, रूस में 32,000 और सऊदी अरब में 5,625 अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां वात की तादाद 1,29,225 और 87,73,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,64,946 तक जा पहुंची है। फ्रांस में 19,22,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 43,892 जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 18,80,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 32,443 तक जा पहुंची है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्की मौशत में बेहतरी पर पुरुमीद, कहते हैं महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। हमारे मुआशी एशारिये मुसलसल दूसरे हफ्ते कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। ये एशारिये बरसगीर के दीगर ममालिक की सूरत हाल के बरअक्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरुम्मीद हैं मईशत में बेहतरी के लिए, कहते हैं कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। हमारे मुआशी एशारिये मुसलसल दूसरे हफ्ते कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। ये एशारिये बरसगीर के दीगर ममालिक की सूरत हाल के बरअक्स हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तियारबंद गाड़ी में पेश करने का मामला, एहतसाब अदालत लाहौर ने सूबाई सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तियारबंद गाड़ी में पेश करने का मामला, एहतसाब अदालत लाहौर ने सूबाई सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एसपी सिक्योरिटी लाहौर और होम सिक्योरिटी पंजाब को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट ने नए स्विमिंग अकाउंट का खोलने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद FATF का एक और मुतालबा पूरा हो गया है। पाबंदी का इतलाक 16 नवंबर से होगा। पुराने अकाउंट चलते रहेंगे। नए सेविंग सर्टिफिकेट के फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पाकिस्तान पोस्ट ने नए सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद FATF का एक और मुतालबा पूरा हो गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजरसानी की तजवीज़ देते हुए कमी की सिफारिश कर दी है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 3.5 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान मुतवक्किल है, जबकि इमरान खान दौरा अफगानिस्तान अफगान सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान आइंदा हफ्ते के दौरान में होगा। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान में अफगान अमन अमल, दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। FATF के होने वाले पर पाक फौज अफगान पर आपको अपडेट करने के ज़राए के मुताबिक दौरा अफगानिस्तान के दौरान पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर भी मुज़ाकरात होंगे। शुगर का मर्ज दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। कहा कि अपने खाने पीने में एतदाल लाएं और वर्जिश को अपनी आदत बना लें। देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। के आलमी दिन के हवाले से लाहौर के निजी अस्पताल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर डॉक्टर्स और सर्जन्स ने शिरकत की। तकरीब के मुंतज़िम आला और ज़ियाबतिस के माहिर तबीब डॉक्टर मुज्तबा हसन सदीकी ने कहा कि ज़ियाबतिस का मर्ज पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली और एहसास की जरूरत है। तकरीब में शामिल डॉक्टर्स हजरात ने भी शुगर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर का मर्ज अब पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक वबाई मर्ज की सूरत इख्तियार कर गया है।
और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा बुरा लाइफ स्टाइल है। हम लोग हेल्दी डाइट नहीं खाते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, और जो डॉक्टर्स हमें मशवरा देते हैं अनफॉर्चुनेटली उनको प्रॉपरली हम फॉलो नहीं करते। रिसर्च ने साबित किया है कि शुगर से बचा जा सकता है और शुगर रिवर्सिबल है, ये ख़त्म हो सकती है खुराक का अच्छा ख्याल करने से, प्रॉपर टाइम पे वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से और वज़न कम करने से। तकरीब में शुगर की बीमारी से सेहतयाब होने वाली खातून ने भी अपने तजुर्बे का इजहार किया। 22 साल से मुझे डायबिटीज़ है और मैं उसको मैनेज कभी अच्छा या बुरा कर रही हूँ, बट हमारी सोसाइटी में बहुत कम एजुकेशन है शुगर के मर्ज़ के बारे में और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अगर हम अपनी डायबिटीज़ को अच्छी तरह मैनेज करना चाहें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने मौलिद से रब्ता रखें, दवाइयों को रेगुलर लें, वर्जिश करें, अपने खाने का ख्याल रखें और अपने टेस्ट वगैरह रेगुलर कराते रहें और इसको इग्नोर ना करें। डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इसके साथ एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट ज़रूरी है अगर हम एक हेल्दी और एक सक्सेसफुल लाइफ, जो कि इसके साथ बिल्कुल पॉसिबल है, गुजार सकते हैं। तकरीब में शामिल अफराद ने इस आगाही इवेंट के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। तकरीब के मुंतज़िम आला डॉक्टर मुज्तबा हसन सदीकी की काफियों को सराहते हुए मुस्तकबिल में ऐसी तकरीब के इनेकाद को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। तकरीब में शामिल प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान जफर, प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा फारूक और डॉक्टर खावर अब्बास चौधरी ने ज़ियाबतीस के इलाज और एहतियाती तदाबीर पर एक जामिया आगाही लेक्चर्स दिए। तकरीब के बाद ज़ियाबतीस आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। कैमरामैन एहसन के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडे वेदर। मौसम की सूरत हाल ये है कि कोयटा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश, जबकि मौसम सर्द हो गया। चमन में बारिश के बाद बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब में भी आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज दाखिल होने वाले मगरबी हवाओं ने रंग जमाना शुरू कर दिया। बडग्राम में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। नारान और गिरदोनवा में बर्फबारी के बाद इलाके में सफ़ेद चालगे बिछे नजर आए हैं। बाबूसर टॉप, लालूसर झील, सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी हुई। नारान से गिलगित जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल बंद हैं। राजनपुर का गुड़ अपनी मिसाल आप। सर्दियों की सौगात, देसी घी और मेवा जात से तैयार किए जाने वाला गुड़ आज भी मकबूल है। गर्मी हर मौसम की सौगात गुड़, चाय में डालकर पिएं या पकाएं, मीठा या फिर खाएं। खाना खाने के बाद लज्जत से भरपूर राजनपुरी गुड़ आज भी मकबूलियत का मकाम रखता है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते और लेते हैं। माशाल्लाह गुड़ बड़ा चंगा वा, बड़े तरीके नाल बनाया जाता वा। देसी घ्यो इस्तेमाल करते हैं, विच मूंगफली वगैरह वगैरह बहुत चीज़ां, तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। घर च लोग खाण नूं बहुत शौक नाल लेंदे। गुड़ को देसी घी और खुश्क मेवा जात से तैयार किया जाता है। हम शौक से खाते हैं और घर के लिए भी ले जाते हैं। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। अस्पतालों में कोरोना केसेस ज्यादा हैं। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका को शदीद मुआशी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के बाद पहली मीडिया ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी में तेजी से काम किया गया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन महफूज और मुअस्सर है। अमेरिकी सदर ने वाजे किया कि अमेरिका में दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तमाम रियासतों के मुकम्मल नताइज आ गए हैं। रिपब्लिकन झुकाव वाली रियासत जॉर्जिया में जो बाइडन ने इलेक्शन जीत लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत जॉर्जिया में फतह से जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट की तादाद 306 हो गई, जबकि ट्रंप को शुमाली कैरोलिना में फतह हासिल है। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 232 हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त बताएगा कि जनवरी में कौन सदारत पर विराजमान होगा। मुतादिद अमरीकी महकमों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालिया इंतखाबात में धोखाधड़ी और धांधली के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया।
انہوں نے کہا کہ ان الزامات کے کوئی ثبوت نہیں ملے. ٹرمپ نے اپنی شکست قبول نہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ الیکشن میں ایک مخصوص کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کیا گیا تھا. سائبر سیکیورٹی ایجنسی اور انتخابی حکام نے تاہم ایک بیان میں کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ووٹنگ کے نظام میں کوئی ہیر پھیر کی گئی ہے اور ووٹ کو ضائع یا تبدیل کیا ہو. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی انتخابی شکست تسلیم کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مخصوص چینی کمپنیوں میں امریکی سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ پابندی ایسے چینی کمپنیوں سے متعلق ہے جن کا تعلق عوامی جمہوریہ چین کی فوج سے نکلتا ہے. اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جو 11 جنوری سے نافذ ہوگا. اس آرڈر میں مزید کہا گیا ہے کہ چین امریکی سرمایہ کو اپنی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو وسعت دینے اور جدید تر بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہ امریکہ اور بیرون ملک تعینات امریکی فوجیوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے چیف ایڈوائزر ڈومنک کمنگ نے 10 ڈاؤن چھوڑ دیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق ڈومینک کمنگ نے کرسمس تک اپنے عہدے کو چھوڑنا تھا. ڈومینک کمنگ نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ 10 ڈاؤننگ سے اپنے گھر منتقل ہو جائیں. وزیر اعظم کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن لی کین پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق ڈومینک کو اپنا سامان اٹھا کر 10 ڈاؤننگ سے جاتے دکھایا گیا ہے جبکہ ڈاؤننگ میں اندرونی خلفشار اور مبینہ رد و بدل کی وجہ سے مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. فلپائن میں سمندری طوفان سے 14 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے. کئی روز سے اس سمندری طوفان نے دارالحکومت منیلا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اسے گزشتہ کئی برسوں کا بدترین سیلاب کہا جا رہا ہے. 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں اور 4 لاکھ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. لیبیا میں مہاجرین کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی جس میں 110 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مہاجرین اور ہجرت کے امور کی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق لیبیا کے ساحلی محافظ اور ماہی گیر 47 افراد کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. اس کشتی پر 100 سے زیادہ افراد سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. شمالی افریقی ساحلوں پر ایسے حادثات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. اور اب ٹوڈے اسپورٹس. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کہتے ہیں آئی سی سی ایونٹ میں شرکت پاکستان کا حق. بی سی سی آئی بھارت میں شیڈول ایونٹ میں پاکستان کی شرکت کے لیے سہولیات فراہم کرے. احسان مانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آئی سی سی کے اجلاسوں کے دوران بھارت میں شیڈول ایونٹس میں پاکستان کی شرکت کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. ہمیں بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی ایونٹس میں شرکت کے لیے باقاعدہ اجازت دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی گئی کہ آنے والے میگا ایونٹس کے لیے پاکستان کو بھارت کا سفری ویزا فراہم کیا جائے گا، لیکن ہم نے اس سال کے آخر تک تحریری تصدیق دینے کا مطالبہ کیا ہے. احسان مانی نے کہا کہ یہ آئی سی سی ایونٹس ہوں گے اور اس میں شرکت پاکستان کا حق ہے. اور اب انٹرٹینمنٹ.